ओके जी। आज जो हमारा काम होगा वो ज़्यादातर दैट विल बी रिगार्डिंग द प्रैक्टिस सेशन एंड वी विल बी परफॉर्मिंग starting from the writing hypothesis test up till the final conclusion that whether we will accept the or accept or reject the null hypothesis. So that for that we will be performing or we will be solving certain examples, and hopefully that will be helpful for us. So let's start off with the excuse me with the with writing hypothesis. I will start with a simple question, and we will try to solve that problem. Okay. So let me first. Okay. So please read this question and try to answer it yourself, and then we will solve it together. So we have to write the appropriate hypothesis for this particular example. So West High School requires that teachers assign students an average of 3.5 hours of homework each night. The school board believes that teachers are assigning students less than that, so they take a random sample of West High School students to determine if there is convincing evidence to support their suspicion. Let mu represent the average amount of homework teacher assigned for students each night at West High School. So, can you come up with the uh, alternative and null hypothesis for this particular problem? That is the first thing which we have to do. We have to write hypothesis, right? So, let me start off with writing hypothesis. J. So, what do you think will be the null and alternative hypothesis for this particular case? J. Mean is equal to 3.5. Sorry, Mean is mean. equal to 3.5. Okay, ये null Is equal to hypothesis. 3.5 hours. जी sir. Null hypothesis mean is equals to 3.5. Okay. Alternative में is not equal to होगा. थोड़ा सा सोचें, क्वेश्चन पढ़ें फिर से. Requires the teacher assign an average 3.5 hours of homework each night. So that means average आपके पास जो टाइम है वो 3.5 होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे लिखवा दी है. और ये the school board believes that teachers are assigning students less than that. So इसका ये मतलब है कि आपका जो belief या फिर जो status को वो ये है कि 3.5 hours of work अगर हर नाइट को स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, देन देयर इज नो नीड टू क्वेश्चन एनीबडी. But in this case, what we are saying is there is suspicion, and suspicion is that the teachers are giving less than that. So it is not 3.5; it is less than 3.5. So that means suspicion is that. So in this case, there has to be an alternative hypothesis regarding the very same thing, that it is something that alternative hypothesis has to be. G. So greater than 3.5. Less than Greater than या less than? less than 3.5. Greater than किसने कहा था, क्यों कहा था? सर जी. इसलिए कि सर इसमें कहा गया कि सर लेस देन जो है ना वो टीचर्स स्टूडेंट्स का जो है मोटिव कि वो लेस देन दे रहे हैं, तो हमने सर ठीक है. उसके उल्टा लेना है कि वो मतलब हमें ज्यादा लेना चाहिए.
इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है सर। नहीं, उल्टा क्यों लेना चाहिए? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे सर लेस देन ग्रेटर देन लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है स्टेटमेंट से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, स्टेटमेंट से तो लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे। सर वो 3.5 से वो स्टूडेंट्स का मोटिव है सर, तो लेकिन टीचर कम दे रहा है, हालांकि ओरिजिनल जो है सर वो 3.5 से ऊपर होना चाहिए था सर। ऊपर नहीं, उन्होंने लिखा होता है टीचर असाइन एन एवरेज ऑफ 3.5, 3.5 होना चाहिए, ठीक है ना? सो इस केस में ये वाला पार्ट तो आपका सही है। अब इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इट हैज टू बी लेस देन 3.5 बिकॉज दिस इज व्हाट इज द बिलीफ और सस्पिशन ऑफ योर ऑफ द काउंसिल, राइट? सो इसका क्या मतलब है कि दे आर सेइंग दैट ओके इट हैज टू बी 3.5 but we suspicion our suspicion is that it is less than 3.5 hours of work which is given by the teachers, okay? तो दिस इज योर हाइपोथेसिस। ओके, एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि less than 3.5, okay? देखो, okay, this is another question, or try to answer this one as well. Catalina read a report saying that the average daily high temperature in Buenos Aires a few years ago was 18.2 degrees centigrade. She believes that last year was warmer than this. To test her belief, she takes a random sample of 20 days from last year and record the excuse me daily high temperature on each chosen day. Let mu represent the average daily high temperature in Buenos Aires last year. जी, इस केस में क्या होगा? या प्रैक्टिस जो आपकी हो रही है, एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है, अगर आपने ये सही कर लिया तो होपफुली दैट विल बी हेल्पफुल इन द एग्जाम एज वेल. Sir, null hypothesis would be the mu is equal to 18.2 degrees centigrade. Okay, And the alternate hypothesis will be that mu is greater than 18.2. greater than 18.2 मतलब is equals to and greater than 18.2. जी sir. ओके, सो हमारे पास जो सॉरी नल हाइपोथेसिस आ रहा है वो है mu is equals to 18.2 degree centigrade, and alternative hypothesis is that mu is greater than 18.2 degree centigrade. So remember that Catalina read a report and that average daily high temperature in Buenos Aires a few years ago was 18.2 से. अब इस केस में 18.2 degree centigrade temperature per day is a normal situation because this is the normal average daily temperature. So this is your normal, that is your status quo. And now she believes, now when we talk about she believes, that means there is an alternative hypothesis she is giving, and this is that last year was warmer than this. So test her belief and so on and so forth. So in that case, it is warmer का मतलब क्या है कि straight away we are talking about the higher temperature than 18.2. So that is why we are writing mu greater than 13.2. Hopefully मेरा ख्याल है ये बात सबको excuse me, ये बात सबको समझ आ गई है, ठीक है जी? यस सर। ओके, एक आध और क्वेश्चन कर लें। श्योर सर।
कोई गड़बड़ कर रहा है यार, एक सेकंड। मेरी बात सबको आ रही? यस सर, आ रही है। ओके, मेरा वो इंटरनेट थोड़ा सा अजीब है, अभी तक नहीं लगा था। ओके, ओके। His question was, school counselor heard that teenagers sleep on an average of 9 hours per night on the weekend. The counselor wants to test if this figure holds true for students at their school. So they take a random sample of students and ask them about their weekend sleep habits. जी, इस केस में आपके ख्याल में क्या होंगे null and alternative hypothesis? So null hypothesis should be mu is equal to 9 hours, or alternative hypothesis should be mu is equal to not equal to 9 hours. Very good. Exactly. Yes. इस केस में देखिए कि इस केस में आपके पास डायरेक्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि म्यू आपको कह रहा है कि एवरेज स्लीप शुड बी 9 आवर्स, sorry, and counselor wants to check if this is the pattern which is followed or not. That means not means that it is not is equals to 9 hours. So इसका मतलब है कि आपका it can be even greater than or it can be less than both the cases, from 9 hours, right? So that is why we will have excuse me, the same thing, यानी कि आपके केस में आपके not is equals to आपके पास आएगा। होपफुली मेरा ख्याल है ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है? ये सबको समझ आ गया ना जी? यस सर। अच्छा, जल्दी से okay जी। A company sells cans of caviar that say they each contain 100 milligram, 100 grams of product. A consumer advocacy group suspect that the company is underfilling these cans. The group obtains a sample of of cans and measure how much product is in each can. They calculate a sample mean of 99 grams and a sample standard deviation of 1 gram. They will take further action if this is significantly lower than the advertised amount. This case may let mu represent the mean amount of product in all the cans of this type. So we have to write hypothesis for that. So जी बताइए क्या होगा null and alternative hypothesis? सर म्यू नॉट 100 ग्राम और अल्टरनेटिव वो भी इक्वल टू 99। Mu is equals to 100 grams, okay, or alternative hypothesis ये भी इक्वल टू 99।
This is equals to 99. यस सर, इसमें भी डायरेक्शन क्या नहीं क्या है। है? कैसे? सर इसमें डायरेक्शन नहीं दी ना। ओके, तो आपने तो मुझे इक्वल्स टू 99 ग्राम्स लिखा है ना? सॉरी सर, आपने तो 99 ग्राम्स मुझे लिखवाया, यही आपने नहीं लिखवाया जो मैंने लिखा। यस इक्वल टू 99। So, is it correct? आपको देखिए क्वेश्चन पढ़े, a company sells cans of which should be 100 grams of product. A consumer, some group suspect that the company is underfilling these cans. So suspicion क्या है कि 100 ग्राम से कम है, ठीक हो गया? और द ग्रुप ऑफ ये वो इस याद रखिए कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो इस हाईलाइटेड एरिया के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये आपकी टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया which has to be done to validate our hypothesis। तो आपका हाइपोथेसिस जो आएगा वो सिर्फ इन दो लाइंस में से आ रहा होगा। ये 99 सैंपलिंग है जी, लेस देन 100 सर। लेस देन 100 एग्जैक्टली। सो इस केस में याद रखना है कि ये आपको जो बाकी सैंपल और बाकी सारी कहानी की गई है वो एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए गई है। अल्टीमेटली दिस इज द null and alternative hypothesis for this particular case. So hopefully मेरा ख्याल है कि सबको याद रहेगा कि कैसे काम करता है। ठीक है जी, ओके। अब जो सेकंड है, अगर आपको याद हो, इसके बाद हम चेक करते थे कि आपने हाइपोथेसिस के बाद जो आपके पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसके अंदर क्या सारी कंडीशंस, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, स्टेप 2 लिखता हूं मैं, स्टेप 2 कंडीशंस ऑफ द टेस्ट आर मेट और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो कंडीशन में जल्दी से मेंशन कर देते। नंबर 1 आपके पास रैंडमनेस होनी चाहिए। नंबर 2 आपके पास क्या था, जिसको याद है जल्दी से बताएं। सैंपल साइज ग्रेटर देन 30। नहीं, वो तो इंडिपेंडेंस थी हमारे पास, एंड लास्टली आपके पास कुछ और भी चीज थी। क्या था जी? जल्दी से बताओ यार। Sample size greater than should be 30. रैंडम था नहीं, वो आप क्या, वो ये तीन चीजें जो आप चेक करें, रैंडमनेस, इंडिपेंडेंस एंड नॉर्मैलिटी, ये आपने चेक करना होता है। ठीक है, रैंडम के केस में आमतौर पे इट इज मेंशन्ड द क्वेश्चन दैट इट इज अ रैंडम सैंपल व्हिच इज रैंडम सैंपलिंग इज डन। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कुछ और बात की थी। इंडिपेंडेंस के केस में हमने कहा था कि या तो आपके पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए सैम्पलिंग, अगर ये है तो वी आर गुड, अगर ये नहीं है तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन से ज्यादा सैंपल साइज नहीं होना चाहिए। ये हमने दो बातें की थी। ठीक है, और जो नॉर्मैलिटी के केस में कि अगर आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन इज नॉर्मल, यू आर गुड। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो इस केस में आपने कहा था कि वो आपको साइज याद होगा, याद है? ठीक है, अगर हमने कहा था कि पॉपुलेशन इज नॉर्मल है, वी आर गुड टू गो, इसमें कोई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सैंपल अगर अपने स्मॉल भी है तो इन दैट केस वी आर गुड, यानी कि आपके पास इवन 16 से लेस देन भी हो तो वी आर फाइन। बट अगर आपके पास जो मॉडरेटली स्क्यूड हो तो इस केस में आपने 16 से 30 के दरमियान सैंपल साइज लेना था, अगर मॉडरेटली स्क्यूड हो। और लास्टली अगर आपके पास ग्रेटर देन 30 हो तो इन दैट केस वी आर गुड टू गो, बिकॉज ये आपके पास CLT अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो ये नॉर्मैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कुछ चीज। अब ये तीन वो कंडीशंस है जो कि आपके हर
जो केस में चेक होनी है, ठीक है। सो इसमें अब दोबारा से कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि क्या इसके अंदर आपके पास सारी की सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। ओके, सो रीड इट आउट और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें आपके पास कौन कौन से स्टेप्स में कंडीशंस मीट हो रही हैं। A gym advertises that its 1,010 members on average lost 5 kg in their first month of membership. A skeptical employee suspects that the actual average is lower than this. So they take an SRS of 10 customers and look at each of their weight losses in their first month of membership. The sample data is skewed to the right with an average weight loss of 4.25 kg and standard deviation of about 3 kg. The employee wants to use these sample data to conduct a t-test about the mean. अच्छा, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि एक अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि हम इसके लिए हाइपोथेसिस भी लिख लें, ठीक है ना। सो वो कि हमें सिर्फ कंडीशंस को चेक करना था, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसके लिए null and alternative hypothesis भी लिख लें। जी, कौन बताएगा? A gym advertises that 1,000 members on average lost 5 kg in their first month of membership. A skeptical whatever, ठीक है, इस केस में कि actual average is lower than this। जी, अब मुझे बताइए कि इस केस में क्या होगा? Alternative hypothesis and null hypothesis। सर नल हाइपोथेसिस होगा कि एवरेज वेट लॉस इज 5 kgs और अल्टरनेट होगा लेस देन 5 kgs। चलो, म्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है कि आपने एवरेज वेट लूज कितना किया है। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या जी? 5 kgs। 5 kgs, ओके। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन 5 kgs। वेरी गुड, यस, इट इज लेस देन 5 kg। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सस्पेक्ट दैट एक्चुअली इट इज लोअर देन दैट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे लिखा होता कि स्केप्टिकल एम्प्लॉय सस्पेक्ट दैट एक्चुअल एवरेज इज नॉट इज इक्वल्स टू या इज डिफरेंट देन 5 kg, तो इस केस में आपके पास क्या होता? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस Not equal to 5 kg. वेरी गुड, शाबाश। चलो जी, अब बताइए कि इस केस में ये जो ऊपर मैंने 3 कंडीशन दोबारा से रिपीट कर दी थी ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इस केस में बताइए कि 1 बाय 1 के आपकी कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहले रैंडमनेस की हम बात करते हैं। रैंडम कंडीशन सेज that your sampling should be done। अच्छा, याद रखिए कि when we are talking about these conditions, we are talking about the conditions regarding the sampling, the process sampling done, and if we have met all these conditions while sampling to justify or to test our hypothesis, तो ये उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। So इस केस में अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज है कि your sampling should be random। So is there any justification for that it is done randomly or not? सर SRS अगर देखें तो फिर इससे पता लग रहा है कि रैंडम है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Simple random सैम्पलिंग। very good, yes। So SRS stands for simple random sampling, so it is simple random sampling। So इस केस में अगर आपके पास simple random sampling, तो इसका मतलब है कि random condition is done because it is mentioned in the question that it is done randomly, ठीक है। So in this case we can say that okay, now this was a random sampling test, okay, so that is checked। Second was your independence। What about independence? Independence is
अब उसके लिए मैंने आपको बताया, या तो आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें, यानी कि आपने जो भी पिक किया उसको वापस डाल दिया, तो इन दैट केस आपके दोनों इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर दूसरा केस में आपके पास ये कि आपने जो सैंपल साइज पिक किया हुआ है दैट इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन। जी कम ऑन। चलो इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। आपके ख्याल में रिप्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब आपने जो सैंपल पिक किया 10 का, तो क्या उसमें रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया, तो कहीं पे मेंशन है कि आपने जो लिया वो वापस आपने अपने सैंपल में डाल दिया दोबारा से, यानी कि वो, इसका मतलब क्या है कि आपने एक को जो पिक किया है वो दोबारा से पिक हो सकता है नेक्स्ट इवेंट के अंदर सैंपलिंग के दौरान, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट जो कर दी है। नहीं सर, इस तरह का तो कुछ भी मेंशन नहीं है। इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इट इज नॉट विद रिप्लेसमेंट। तो इसके बाद इसका मतलब दूसरी चीज मुझे क्या चेक करनी है कि 10% ऑफ पॉपुलेशन है या नहीं। जी, अब उसके ऊपर कमेंट करें। सर 1% है, 1000 का 10 है। सॉरी, 1000 का 10 है, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 10 आउट ऑफ 1000, ठीक है। 1000 आपके टोटल मेंबर्स हैं, 10 आपने कस्टमर्स पिक किए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कितने परसेंट बना जी? सॉरी, 1%। इसको जानने के लिए, ठीक है, सो इट मींस इट इज 1%, so it is definitely less than 10%। so हमारे केस में क्या था कि आपकी पॉपुलेशन 10% या उससे कम होनी चाहिए। so इस केस में चेक है या नहीं है? सर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है कि है? लेस देन 10% है सर, इंडिपेंडेंस है। ओके, थर्ड वन इज क्या था जी? नॉर्मेलिटी। स्क्यूड है। okay, it is mentioned that your data is skewed to the right, ठीक है, with an average weight of whatever, ठीक है। तो तो इस केस में आपका नॉर्मेलिटी जो है वो चेक नहीं है, क्योंकि इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट देयर इज अ स्क्यूनेस इन द डेटा, ठीक है। ठीक है कि नहीं, समझ आ गई कि नहीं? सर अगर इस तरह होता कि ये मेंशन होता कि स्क्यूड डेटा है लेकिन इसका सैंपल साइज 16 से 30 के बीच में, तब हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते थे ना। डिपेंड करता है कि मॉडरेटली स्क्यूड है या हाईली स्क्यूड है, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि मॉडरेटली स्क्यूड है फिर तो आप ये कर सकते हैं, बट अगर बड़ा हाईली स्क्यूड है फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको 30 एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ओके जी, इसको पढ़िए। Here are two samples drawn from two different populations, ठीक है, सैंपल ए और सैंपल बी आपके सामने नजर आ रहा है। Which sample satisfy the normal condition for performing the t-test?
जल्दी से, ये तो मैं कहना आराम से आपको आ जाना चाहिए। जी बी है सर। ओके, ए के बारे में और बी के बारे में क्या कहते हैं, दोनों के अलग अलग कमेंट करें। ए में आउटलायर सर। सॉरी दोबारा बोले। सर आपने क्या ए के ए के अंदर स्क्यूड है सर और बी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बी में नॉर्मल है, ये नॉर्मेलिटी है। सर ए में ज्यादा स्क्यूड है। अच्छा चले, मतलब बी में आपके ख्याल में कम स्क्यूड है? यस सर। नहीं तो ये कम ज्यादा तो हमने नहीं कहा कि अगर मतलब आपके पास एक जो है ज्यादा स्क्यूड हो और एक कम स्क्यूड हो, तो इस केस में आप जो है उसमें नॉर्मेलिटी कंडीशन को कहेंगे सेटिस्फाई है, ऐसा कहा था हमने कहीं पे? नो सर। फिर सर नहीं करते। क्या नहीं है? सर नहीं करते इसकी नॉर्मेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई। दोनों? सर बी हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि साइज ग्रेटर देन 34 इसका लिया हुआ है ना सैंपल का। पहले मुझे ए बताएं, ए नॉर्मल आती है कि नहीं आती? नॉर्मेलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही ए के केस में? नहीं नहीं, रीजन क्या है? सर क्योंकि सैंपल का साइज भी कम है और डेटा भी स्क्यूड है। गुड, तो साइज, सैंपल साइज is small and skewed, that is why. Okay, और B? सर बी में डेटा स्लाइटली स्क्यूड है लेकिन सैंपल साइज ग्रेटर देन 34 है तो वो इसलिए टेस्ट कर सकते हैं। Sample size is 34, कितना जी, 34 which is greater than is equals to 30, so we are good to go। ये आपके पास, क्योंकि इस केस में CLT आपका अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास नॉर्मेलिटी कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है, ठीक है। सो होपफुली ये बात सबको समझ आ गई है जी, आ गया जी? यस सर। ओके गुड। चलें जी, ये कोर्स वाले इसको पढ़ें और बताइए। West High School is a large school with more than 2,000 students. The school requires that the students are assigned an average of 3.5 hours of homework school night. The school board believes that students are assigned less than that, so that they take a random sample of 50 West students to determine if there is convincing evidence to support their suspicion. The homework times in the sample are strongly skewed to the right. J. सबसे पहली जो आपके पास कंडीशन थी उसका हम कहते हैं रैंडम। जी, व्हाट अबाउट द रैंडम? रैंडम ट्रू है या नहीं है? सर ट्रू है। ट्रू कैसे? ये स्टेटमेंट में मेंशन है कि रैंडम सैंपल ऑफ 50 वेस्ट हाई स्कूल स्टूडेंट। ओके गुड, रैंडमनेस इज ऑलरेडी डन, सो वी आर गुड टू गो। जी अगला, रैंडमनेस के बाद अगला हम कर देते हैं इंडिपेंडेंस। जी सर लेस देन
10%. लेस देन 10% है ऐसे 50/2000 Yes, sir, less than Like 2%. 2.5%. 2.5%. 2.5% of the so sorry sample size is less than 10%. Okay, so because of this very reason this is also checked. G. Okay, so independence is also there. What about the last one, normality? G. Skewness का mentioned are strongly skewed in sample size greater than 30 है. Sample size is Greater than 30. तो मतलब क्या क्या लिखा है आप कह रहे हो? सर skewed है, normal तो नहीं है. ओके, तो आप कह रहे हो कि नॉर्मेलिटी कंडीशन नहीं है? Yes sir. थोड़ा सा और सोचो उस पर. Sir, greater sample size is greater than 30. दोबारा बोले क्या करें? सर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 की कंडीशन है क्योंकि वो सैंपल 50 का ले रहा है. हाँ, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. वजह आप सही कह रहे हो, पर मुझे थोड़ी सी रीजन समझा दो, बाकी ठीक है. जी बोले. नॉट श्योर. आप सही कह सही रहे हो यार, मैं यही तो बात कर रहा हूँ. आप जवाब आपका सही है, बस उसकी जस्टिफिकेशन दे दो. चलिए मैं बता दूं. एन आपका जो है वो 50 है, विच इज ग्रेटर देन 30 है. ये अभी जैसे बताया गया और बिल्कुल सही बताया गया कि इस केस में दिस सजेस्ट्स, बल्कि नॉट दिस कहना चाहिए, CLT suggests that when sample size is quite greater का आता है, इस केस में greater which mean इस केस में 50 है, which is quite greater than 30, the sampling distribution approaches normal distribution, right? यस सर. बिकॉज ऑफ दिस वेरी reason normality. अच्छा, एक चीज इसमें जो है ना, आप कंफ्यूज थोड़ा सा करने के लिए ये लाइन लिखी हुई है, is strongly skewed to the right. जी, इसको अगर हम पढ़े तो आप स्टेट में कहते हैं यार ये नॉर्मेलिटी तो नहीं है. ठीक है, जी सर. अब इसका क्या मतलब है कि आप जब कहते हैं होवर टाइम्स इन द सैंपल आर स्ट्रांगली स्क्यूड टू द राइट, इसका मतलब है कि जो डेटा आपने सैंपल किया उसके अंदर से आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज आई है. एग्री? जो एक्सट्रीम वैल्यूज करते सर. सॉरी जी बोले. सर ये पॉइंट रिपीट करते हैं जो आप अभी बता रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज वाला. अभी तो वो कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैंने तो अभी बात स्टार्ट किया. मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल लिया गया है, ठीक है, सैंपल लिया गया है और इस सैंपल के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज आई हैं एज पर दिस डिस्कशन. तो इसका क्या मतलब है कि आपके सैंपल के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं.
ठीक है, बट यस सर। आपका जो सैंपल साइज है वो काफी बड़ा है। अब सैंपल साइज जब काफी बड़ा हो जाता है तो सीएलटी क्या कहता है कि अगर इवन आपकी जो डेट, आपका जो ओरिजिनल पॉपुलेशन स्क्यूड है, यानी कि आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर वो इस तरह है, लेट्स से व्हिच इज अ स्क्यूड, और इसमें सैंपलिंग करके और सैंपल साइज मेरा लार्ज एनफ हो, जो मेरे पास जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी दैट विल अप्रोच नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये पॉपुलेशन है और दिस इज योर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन with n quite big। बात समझ आ रही है? यस सर। इस सबको समझ आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस केस में अगर आपके पास पॉपुलेशन में कुछ आपको कह भी देता है स्क्यूड है, पर सैंपलिंग वो जब कर रहा है और सैंपलिंग साइज उसने बहुत बड़ा रखा हुआ है, तो इस केस में आपकी सैंपलिंग ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी बाय यूजिंग सीएलटी। ठीक है, ड्यू टू सीएलटी। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट बात जी सर, अगर वो इस लाइन में सैंपल ना करता इस टाइम, मतलब वो यहाँ पे इन द सैंपल ना लिखता, वो सिर्फ ये लिख देता होमवर्क टाइम आर स्ट्रांगली स्क्यूड टू द राइट, फिर हम कह सकते थे कि ये नॉर्मल नहीं है। सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोले। क्या क्या सकता था सर? इस लाइन में अगर वो ये कह देता कि द होमवर्क टाइम इज स्ट्रांगली स्क्यूड टू द राइट, सैंपल ना लिखता है, तो हम कह सकते थे कि ये नॉर्मल नहीं है। कह सकते थे ना। देखिए, अगर ये वही बात जो आप कह रहे हैं वही सेंटेंस बनता है, होमवर्क टाइम्स इन द सैंपल या होमवर्क टाइम्स आर स्ट्रांगली स्क्यूड टू द राइट। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो डेटा सेट जो आ रहा है, जो सैंपल के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो उसमें स्क्यूनेस है। ठीक है, स्क्यूनेस हम रहा कि उसमें एक्सट्रीम कोई वैल्यू इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। ठीक है, बट बिकॉज आपके पास सैंपल साइज इतना बड़ा है कि आपने जब भी उसमें से वैल्यूज को बार बार जब आप पिक करोगे तो अल्टीमेटली इट विल अप्रोच दिस थिंग। हालांकि यही मैं बता रहा हूँ कि स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी जो है पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है ना, इसका ये मतलब है ना, क्योंकि सारी सैम्पलिंग तो पॉपुलेशन में से हो रही है। ठीक है, समझ आ गई सबको जी? सर ओके, सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर इस लाइन में ऐसी क्या चेंजेस करें कि ये मतलब नॉर्मेलिटी को सर वो मतलब फॉल्स कर दे सर? साइज को स्मॉल कर दें। इस लाइन को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि आपकी स्क्यूनेस अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर आ भी जाती है तो सीएलटी ये कहता है कि अगर आपके पास n is large enough that in this case you can always assume normality। सर Okay, here are two different samples drawn from two different populations आपके पास हैं। Which sample satisfies the normal condition for performing the t-test? जी, सैंपल ए और सैंपल बी। जी, सैंपल ए के बारे में पहले कमेंट करें, यस या नो। आंसर इज नो, क्योंकि इस केस में योर सैंपल साइज इज इवन स्मॉल एंड देयर इज अ हाई स्क्यूनेस इज देयर, सो इन दैट केस बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट
not normally condition is not satisfied. Same is the case over here. So इस केस में आपके पास B में भी आपके पास skewness नजर आ रही है, एक में right है एक में left है, और उस केस में दोनों में sample size small है, तो both of them, just neither of them is your answer, neither of them. So जो कि आपके पास सॉरी आपको अंदाजा हो गया कि इस केस में आपके पास कंडीशन मीट नहीं हो रही, ठीक है? ओके, सो जो थर्ड स्टेप है, अब मैं ख्याल सेकंड स्टेप भी काफी हद तक आप वो हो गए होंगे, कॉन्फिडेंट हो गए होंगे करने में, ठीक है? हाइपोथेसिस आपने राइट कर लिया, आपने उसकी कंडीशंस जो मीट हो रही हैं वो 3 चेक कर ली, और स्टेप 3 अब आपके पास क्या होता है जी? यू हैव टू कैलकुलेट टी वैल्यू, टी स्टेटिस्टिक्स इसको हम कहते हैं, टी स्टेटिस्टिक्स, ठीक है जी? सो तो अब लेट मी डू जी, jumbo eggs in Australia on average are supposed to weigh 68 grams. Margaret is in charge of a quality control test that involves weighing a sample of eggs to see if the sample mean weight is significantly different than 68 grams. She takes a random sample of 100 eggs and finds a mean weight of 67 grams and a sample standard deviation of 1 gram. Margaret wants to use these sample data to conduct a t-test on the mean, assuming that all conditions for the inference have been met. इस केस में इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने जो नजर आ रही है वो ये पॉइंट है कि आपको जो अभी स्टेप 2 है उसको अज्यूम करना है कि दैट इज ट्रू, यानी कि वो तीनों कंडीशंस आपकी मीट हुई हैं, थ्री कंडीशंस ऑफ रैंडम, इंडिपेंडेंस प्लस आपके पास नॉर्मेलिटी और नट। सो ये आपको अब दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट द टी स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट। सो इस केस में मैं ख्याल है बेहतर ये कि हम लोग पहला स्टेप कम से कम जरूर लिख लें, दैट इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड null hypothesis. G. Mu is your average weight of the egg की बात हो रही है। J. 68 is equals to 68 grams. Okay. Not equal to 68. Sorry, not is equals to, good. Yes, it is not is equals to 68 grams है, क्योंकि इस केस में लिखा हुआ है if the sample involves is significantly different. So different का जो word use होता है तो इसका मतलब है कि it can be different in both the direction. It can be quite large than 68 or it can be way less than 68. तो both आपके पास हो सकते हैं जी। ये कैसे होगा? So मैं ख्याल है इस केस में बाकी तो सारी चीजें मीट हुई हुई है, तो टी की आपने सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी के लिए क्या जी फॉर्मूला था, तो याद है? ये फार्मूला याद है कि नहीं यार? T is equal to x minus mu naught divided by s by square root n, ठीक है? अब याद आ गया? T is equals to x minus mu naught divided by
क्या था जी? एस बाय स्क्वायर रूट एन, यही था। इस केस में इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक्स नॉट वॉज मीन ऑफ सैंपल, mu is the hypothesized population mean, S is your standard deviation of the sampling, N is your sample size, right? अब मुझे बताइए कि सॉरी क्वेश्चन को सामने रखते हुए इनकी वैल्यूज बताइए मुझे। x बार की क्या वैल्यू है जी? मुझे सॉरी समझ नहीं आई। 67 67 आ गई, ठीक है जी, 67 आ गया। म्यू नॉट की क्या वैल्यू है जी? 68 68, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन एस की क्या वैल्यू है जी? 1 आ गया। और एन? सर 100 100। Okay, so all you have to do is calculate then t is equals to 67 minus 68 divided by s, which is 1 multiplied by square root of 100, ठीक है? So clearly it is minus 1 by 10, minus 1 by 10 ही आता है ना? So 0 minus 0.1 is the t distribution, ठीक हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि t के अंदर एक और चीज होती है तो उसको हम क्या कहते थे? जल्दी से बताएं, जो मोस्ट रेलिवेंट होती है t डिस्ट्रीब्यूशन में। कम ऑन, हरी अप। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? सॉरी 99 99, or this 99 is quite big, so that means your t distribution will behave like z distribution. So for the sake of discussion, अगर मैं इसमें पता है मेरे पास पूरा वो था या नहीं था, let me see. इस केस में अगर आपको याद हो, मेरे पास ये 99 या 100 अगर आप देखना चाहें तो वो आपके पास किधर किधर की वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है ना? तो अगर मैं अपना जो नॉट इज इक्वल टू था तो इसका मतलब है कि आई हैव टू चेक एट दिस कॉलम, ठीक है? और 0 पॉइंट सॉरी इसमें 0 पॉइंट क्या था? 1, ये बात है ना? तो 0.1 का क्या मतलब है कि अगर मैं देखूं तो इस केस में 1.99 या समथिंग लाइक दिस अगर आप यूज करते हो 0.05 सिग्निफिकेंस है, तो इस केस में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 1 पॉइंट सॉरी आपके पास आ रही है टी की वैल्यू, सॉरी किधर हो गया, टी की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आपके पास माइनस 0.1 है जी। इस केस में आपको नल हाइपोथेसिस जो है उसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? जी बताइए। तो नहीं है सॉरी आपकी आवाज बहुत कटी, मुझे समझ नहीं आया। जी बोलिए, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी दोबारा से बात कीजिएगा।
जी सर रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट होना चाहिए। अच्छा, रिजेक्ट क्यों होना चाहिए जी? सर क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस है सर वो ट्रू नहीं हुआ सर, फॉल्स है सर वो। नहीं ये नहीं और ये 90 नहीं, आप वैल्यूज की बेसिस के ऊपर बताएं कि क्या मेरे पास मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने भी वैल्यू जो आपको बता रहा था, टी टेबल अगर कहना चाहिए या टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो उसकी बात आपके ख्याल में बल्कि मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास अगर मैं इसमें सॉरी इसमें एक चीज जो वैसे मेंशन नहीं है, मैं वैसे आप इसे कि अल्फा मैं इसके लिए 0.05 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपने 0.025 वन साइड पे और दूसरा 0.025 दूसरे साइड की बात करनी है, राइट। ठीक है ना। और जब आप 99 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इन दैट केस अब अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसके अंदर से जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू जो यहाँ पे बन रही थी वो क्या थी, वो आपने देखी थी, वो शायद 1.9 थी ना। मुझे जवाब नहीं आ रहा, क्या वजह? मुझे लगता है 1.9 थी या समथिंग। ये 1.99 जी। सो इस केस में 1.99 थी, तो आपके पास जो टी की वैल्यू है इट इज वे लेस देन दैट। इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब है कि आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो ये है सारा, और यहाँ से ये everything which falls in this region will be rejected, everything which is in this region will not be rejected। जी, आपके पास जो z की वैल्यू आ रही है वो काफी स्मॉल आ रही है, या t की वैल्यू बहुत स्मॉल आ रही है, तो इस केस में fail to reject null hypothesis है क्योंकि very small समय होते हैं। अच्छा जी, तो t की वैल्यू हमारी आ गई -0.1, ठीक है। जो क्रिटिकल रीजन हो सर ये 1.9 सर, ये दोबारा एक दफा बता रही है किस तरह है सर ये? है ना, टेबल में से नहीं समझ आई किस तरह है सर? टेबल में से नहीं आई समझ? सर वो मतलब कैलकुलेट किस तरह हुआ है सर? अब इस केस में आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 99, अभी आप लोगों ने खुद बताई है, ठीक है। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 99 है, और आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है जीरो, क्रिटिकल वैल्यू है वो 0.25 है ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं इसको जाके टेबल के अंदर देखूं तो ये आपका 0.025 है, ये 0.05 था। तो इस केस में आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 80 और 90 और ये 100 ये सारे जी डिस्ट्रीब्यूशन के करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि इतनी बड़ी जंप के बाद भी आपका डिफरेंस जो है बहुत स्मॉल है। तो यू कैन पिक आइदर 80 और 100 वन ऑफ द सेम थिंग। तो अगर मैं 80 को पिक करता हूं तो इन दैट केस या 100 को पिक करता हूं तो 1.98 आपके पास वैल्यू आती है फॉर 0.025 की सिग्निफिकेंस। तो 1.98 जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, तो एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल रीजन। इसी तरह यहाँ पे 1.98 के राइट से सारा क्रिटिकल रीजन होगा, सही है।
ये अल्फा किस से प्रोबेबिलिटी है सर? नहीं समझे, दोबारा बोले। अल्फा सर, ये 0.05 और 0.25। 0.25 नहीं सके, 0.25 कह रहे हैं, कैसे आए? सर ये अल्फा वैल्यू सर जो आपने अज्यूम की है सर। मतलब 0.25 आप मैंने क्यों पिक किया, आप ये कह रहे हो ना? सर 0.25 मैंने पिक की क्यों किया जी? इस केस में आपके पास जो जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो आपका टू टेल्ड है, इसलिए। तो इसका क्या मतलब है कि जब एक चीज आपके नॉट इज इक्वल टू होती है तो इसका मतलब है कि वो इस साइड पे भी नॉट इज इक्वल टू हो सकती है और आपकी इस साइड पे भी नॉट इज इक्वल टू, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी होके भी डिफरेंट हो सकती है और बहुत स्मॉल होके भी डिफरेंट हो सकती है आपकी मीन वैल्यू से। तो ये टू टेल टेस्ट है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने एक गलती की है फार्मूला में, वो ये है कि फार्मूला मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे एस डिवाइडेड बाय था, मैंने गलत करी। ये है किधर लिखा मैंने, एस डिवाइडेड बाय सिंगल, तो ये डिवाइड होना चाहिए था, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इंस्टेड ऑफ माइनस 0.1 इट विल बी माइनस क्या 10। ठीक है, सो अब इसको मैं कंपेयर करूं तो इट इज वे ग्रेटर देन 2। अब आपका 1.9 था, नाउ it is 10, so 10 is way larger than this value, that means it falls in this over here, so we will reject null hypothesis because minus 10 is way larger than minus 2 in this case, या 1.99 कह लो। ठीक है, समझ आ गई? ओके जी। और भी इगो कर लेते हैं क्वेश्चन ओके। टाइम भी और होने वाला है। इस सेशन का कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। अच्छा चलो, ये एक और क्वेश्चन है। वेबसाइट स्ट्रीम्स movies and television shows to its subscribers. Employees know that the average time a user spends per session on their website is 2 hours. The website changed its design and they wanted to know if the average session length has longer than 2 hours. They randomly sampled 50 users and found that their session length had a mean of 2.75 hours and standard deviation of 1.55. The employee want to use the sample data to conduct t-test on the mean, assume that all conditions of inference are met. So इस केस में वही 3 conditions are met, so you don't have to worry about them. सबसे पहले null hypothesis, alternative hypothesis, ये बताइए क्या होगा जी जल्दी से। Come on. Equal to 2 hours. Mu is equals to 2 hours, okay. और mu is equal greater than 2 hours. Very good, okay. So उसका रीजन यहाँ पे है किधर, ये longer than 2 hours, ठीक है। So because of this we have a alternative है। अच्छा अब मुझे आ जाते हैं हम t के ऊपर। t जो था वो आपको, क्योंकि मैंने कंडीशंस को मीट वरी नहीं करनी क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है। So that was x bar minus mu naught divided by s divided by square root n. x bar जी इस केस में क्या है, जल्दी से बताएं। That 2 hours. नहीं, Oh, sorry. 2.75, sir.
2.75 म्यू नॉट 2 hours sir 2 और इस केस में S 1.55 n इज इक्वल्स टू इस केस में कितना है जी 50 यूजर्स ओके 50 sir जी T इस केस में फिर क्या होगा जी 2.75 minus 2 divided by 1.55 divided by square root 50 so तो बता देता जी इसका आंसर क्या आएगा Yeah, 2.75 minus 2 is 0.75 तो कर रहा है नहीं कर रहा 150 square root so 3.4041 3.41 3.41 Are you sure कि 3.41 सर मैंने कैलकुलेशन की है जल्दी में आई ठीक है दोबारा कर लेना सर कैलकुलेटर से ही किया ना यस सर तो होपफुली इट शुड बी करेक्ट मेरा तो ये ख्याल है तो मल्टीप्लाई बाय चलो मैं भी एक दफा कर लेता हूँ जस्ट टू बी श्योर ठीक है 3.42 ही आ रहा है 3.42 आ रहा है ठीक है चलें आप लोग कहना चाहिए अच्छा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 49 और आपने 49 के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये क्वाइट हाई है अगेन दैट मींस इट इज greater than even 30 so that means we will be approaching the z distribution value ठीक है उसकी बेसिस के ऊपर आपने 0 पॉइंट इसमें ग्रेटर देन है तो आपने 0.05 अगर अल्फा सेट करते हो तो उसका इसका क्या मतलब है आपने ये चेक करना है कि क्या आपके राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हायर साइड पे है या नहीं है आपके पास क्या वैल्यू है जी 2.2 और अब आपने कहना है कि क्या 2.75 जो आपके पास आया वो क्या क्रिटिकल रीजन में जाता है या नहीं जाता अगर क्रिटिकल रीजन में चला जाता है तो यू आर गुड टू गो होपफुली मेरी बात समझ आ गई सो मेरा ख्याल है अगर आपको बल्कि जल्दी से देख लेते हैं 2. अब इसमें 0.05 है और हमारा 49 था ना तो लेट्स मेक इट 50 सो अगर हम इसमें 1.67 आपके पास वैल्यू है तो 1.67 का मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू है 3.41 है 3.41 का मतलब है कि 1 क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू था 1.67 and your t statistics is greater than critical value so क्या so we क्या क्या कहूँ neglect sir sorry rejected sir reject h naught तो इसका क्या मतलब है कि अच्छा एक चीज याद रखनी है कि कुछ एक मैं जो है ना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ फिर इसके बाद आई कॉल इट अ डे याद रखें कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं इन दैट केस यू ऑलवेज से दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting your sample statistics provided your null hypothesis is true. This is your conditional probability, ठीक है? This is your conditional probability.
कुछ लोग जो है इसको गलत समझते हैं, वो ये कहते हैं कि व्हाट इज द condition sorry what is the probability of H naught to be true provided your sample statistics। इसमें सैंपल स्टेटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि आपने z स्कोर या t स्कोर या t स्टेटिस्टिक्स जो कैलकुलेट किए उनकी बात हो रही है, ठीक है। अगर इस केस में आप ये क्या कह रहे हो कि आपका इस केस में सेकंड केस में आप ये कह रहे हो कि आपके केस में सैंपल अगर स्टेटिस्टिक्स जो है z स्कोर लेट्स से इस केस में आया है आपका 3.41, तो अगर टी स्कोर 3.41 होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। हम याद रखें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ये काम नहीं कर रहे होते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रादर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग, ये करेक्ट है आपका, व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपका हाइपोथेसाइज्ड मीन जो भी आपके पास है या हाइपोथेसिस जो गिवन है, इफ इट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू, if it is true, then what is the probability of getting this kind of a statistics। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ये कहते हो कि अगर मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसका जो आपने हाइपोथेसिस का जो भी आपका हाइपोथेसिस है, इफ मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं ट्रू, इफ आई कंसीडर इट ट्रू, और इसमें से मैं अगर सैंपल लेता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सैंपल विद दिस स्टैटिस्टिक्स, जो भी आपके ZD या जो भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर रहे हो। So if the probability of getting this sample statistics from this population is higher, then in this case we will accept that okay, that means that our null hypothesis our null hypothesis cannot be rejected। That means हमें ये नजर आ रहा है कि अगर आपके पास ये null hypothesis होता तो इस केस में probability of getting this kind of a sample value is quite high, yeah, it is a probable, yeah, there is a possibility of that। बट अगर आप कहते हो कि मैं अगर अज्यूम करता हूं कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और सैंपल की वैल्यू बहुत दूर यहाँ पे कहीं पे चली जाती है, तो आप ये कहते हो कि अगर मैं अपना नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान लूं तो इस केस में इस तरह के सैंपल की स्टैटिस्टिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। सो अगर ये दोनों में बातें फर्क समझ आ गया, तो अगर ये आ रहा हो आपके पास तो इसका मतलब है कि आपका जो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है इट इज सजेस्टेड एंड वी फेल, और वी कैन से दैट देयर इज एन एविडेंस अगेंस्ट योर नल हाइपोथेसिस, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपका जो सैंपल आ रहा है उसके स्टैटिस्टिक्स के इस तरह की पॉपुलेशन जिसमें यह हाइपोथेसिस ट्रू हो, उसमें आने की चांसेस बहुत थोड़े हैं। Am I clear? Yes sir। So this is very important point, और इसको याद रखना है और इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन के बारे में अभी तक? चलेंगे, ठीक है, आज के लिए जी इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी कितने, ये लास्ट वीक है इसके अगला लास्ट वीक है क्लासेस का सर? हाँ जी सर नहीं पता सर, एक तो क्लासेस है आई थिंक ये लास्ट वीक है। है। आपके एग्जाम जो है फर्स्ट के बाद से स्टार्ट है ना? सर अभी कोई डेट नहीं है सर। अच्छा, डेट नहीं है, चलें सही है। चलें इन एनी केस इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। होपफुली जो मैंने अभी तक जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताई थी, आज मैंने उसकी आपको प्रैक्टिस करवा दी है कि अगर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये 2-3 चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी, और आपका शुरू से लेकर आखिर तक जो स्टेप्स है वो मैंने सारे बता दिए आपको, ठीक है, कि आपने फाइनल रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की तरफ कैसे जाना है और बाकी सारी चीजें क्या है। उसके अलावा आपको होपफुली अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। सही सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी आपसे।